after a very long time. But hi everyone, today I'm here with CMA Final SCM paper analysis for June 2026 attempts. We are just left with 4 to 5 days of our exams. So we have to make sure that we are putting all our efforts, and today I'm here to help you that what will be your strategy to study SCM subject in your last day. And for that, I am here with the paper analysis for the last 10 attempts. So अगर आपका भाई साहब अभी आखिरी मोमेंट पे पढ़ाई करने का मन है, जो होना चाहिए बिल्कुल, हाँ, लास्ट डे हमें रिवीजन करना है सारा का सारा, तो उस रिवीजन के लिए इस पेपर एनालिसिस को रेफर करके अगर टॉपिक वाइज चलोगे, इसके हिसाब से टॉपिक वाइज चलोगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से कवरेज कर पाओगे. एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट इन द लास्ट मिनट ऑफ द टाइम. एंड विद दैट आई ऑल्सो हैव सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू CMA फाइनल स्टूडेंट्स. So I am going to launch your SCM Hindi Marathon and SCM English Marathon, which is going to be held from tomorrow onwards. And the time periods I'm definitely going to share with you. But before that, let's first discuss this paper analysis. And yes, this paper analysis, I'm going to share with you some insights. But with that, this particular paper analysis related PDF, I'm definitely going to share it with you in the Telegram also. So make sure. The link is also given in the description box. Make sure you're joining the Telegram at CMA Junction. There you will find out this particular PDF for your paper analysis of CMA Final SCM. So let's start with our paper pattern first. So as it was in your CMA Inter, that is the same kind of paper pattern which is going to be followed here. So first we have 15 MCQs and every MCQ is going to be of 2 marks each. No reasons are required as such. That means just by ticking one option, you're going to get this 2 marks. तो यार क्यों छोड़ना है इसे? हाँ, थिंक अबाउट इट. सो टोटल 30 मार्क्स आपको ऐसे मिल रहा है कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन ऐसे लिख के आना है ABCD में से. तो क्यों छोड़ के आओगे भाई साहब? नहीं छोड़ के आना है, इसको तो फॉर श्योर करके आना है. और तुम्हारे एग्जाम में देयर इज नो एज सच नेगेटिव मार्किंग. हाँ, तो तुम करके भी आ सकते हो, इससे गलत भी करके आओगे तो भी चलेगा, इससे छोड़ के नहीं आएंगे भाई साहब. CMA इंटर से सीख लिया होना चाहिए तुमने अभी तक कि तुम्हें ये तो करके आना ही आना है. और इसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इट वाज देयर इन योर CMA इंटर ऑल्सो. आपको इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं. हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा. 2 क्वेश्चन वाला पैटर्न हो सकता है जहाँ पे 7-7 मार्क्स के एक क्वेश्चन हो रहे हैं, या फिर 1 क्वेश्चन वाला भी पैटर्न हो सकता है जहाँ पे पूरा एक ही क्वेश्चन आ रहा है 14 मार्क्स का टोटल, या फिर वो आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन 3-3 पार्ट में भी बटा हो सकता है 5-5-4 मार्क्स. इसके चांसेस बहुत कम है आपके SCM सब्जेक्ट में, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है. मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस दिखेंगे आपको इस कैटेगरी वाले दिखेंगे कि 7-7 मार्क्स में उन्होंने पूछ लिया, या फिर 14 मार्क्स का एक पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है. नाउ तो स्पेसिफिकली जब मैं ये पेपर एनालिसिस डिस्कस कर रही हूँ ना, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस 15 MCQs. व्हाई? बिकॉज you have to cover this from all the study materials which institute is providing you, whether it be their MCQ bank, उनका study material, उनके past attempts. You have to cover this from each and every place because this 30 marks you can't compromise on any part of it. ठीक है. और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप 5-6 घंटा बैठोगे, आप खत्म कर डालोगे सारा का सारा. So make sure you are doing this for sure. And if I talk about your long answer questions specifically, so we have total 15 chapters. Think about it. It's huge, right? And I have subdivided that what all things you need to prioritize. Before seeing all these details, I'll suggest you to prioritize this chapter number 3 first of all. This is going to be your first priority because this chapter itself is asked for around, on an average, 30 marks in your exams. So this becomes the most important chapter of your SCM, which you have to definitely do. And then the second most important chapter is your evaluating performance, which is nothing but your standard costing and variance analysis part. So this is your second important part because every time, whenever the institute is asking, they are asking for 14 marks from this particular chapter. So you have to definitely cover this particular chapter. And then directly move to your quantitative techniques, that is section number B. And in this section number B, you should start with this part. Specifically, this category. This is going to be your third category where your chapter number 10 and 11 is covered. Because if you notice, whenever they are asking from chapter number 11, most of the time they are asking for 14 marks of the question. It had happened that in your previous attempt they had not asked from this particular chapter, but if they are asking, and the chances are there that in your attempt they might ask, and if they are asking, they are going to ask you a 14 marks question. So why to leave this particular chapter? Plus with that simulation, they are not leaving this chapter.
They are asking from a very long time, and I think they are going to continue from this chapter, so make sure you're covering this chapter number 10 also. And after that, move to this particular category. This is your fourth category, where you are going to cover learning curve, business application of maxima minima, then business forecasting model, and this introduction to tools of data analytics. This introduction to tools of data analytics they have not asked for from a very long time, so I think they can ask this particular chapter. Plus with that, this maxima minima they are asking from for most of the attempts, and this chapter is very very easy. So you have to make sure that you're doing these 4 chapters, because together these 4 chapters can give you from 7 to 21 marks also. Because let me show you one attempt where they ask for all the from these 3 chapters they asked all the 7 marks of questions. Okay, so this is going to be your 4th category. And the 5th category is this one, from 6th to 8th chapter. Okay, and then move to this chapter number 4, which is your activity based costing, because here also they are covering 4 chapters, but at max they are 4 different topics, but at max they are going to ask you this chapter for 7 marks only. So I'll suggest you to keep this chapter at the 6th part. And if you want to prioritize the theory, तो थ्योरी के लिए तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये चैप्टर नंबर 1, 2 से वो ज़्यादा थ्योरी पूछने के चांसेस. ठीक है, तो मैंने कैटेगराइज किया है. प्रियोरिटीज़ बताइए कि किस प्रियोरिटी में कवर करना है. मैं ऐसा तुम्हें नहीं बोल सकती कि ये चैप्टर छोड़ दो और ये चैप्टर कर लो. भाई साहब, तुम CMA फाइनल में आ चुके हो. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि तुम यू कैन लीव एनी ऑफ द चैप्टर्स. You have to cover everything, but last moment we will not be able to cover each and everything. So what we can do is we can prioritize the topics which are asked for a higher number of marks. Okay, and that is what you are going to do. Now let me go into the details first. So in this chapter number 3 specifically, if I talk about this 14 marks of question, every time they are asking either from your make or buy, accept, reject, key factor analysis, or else they are asking from relevant costing. See, this 14 marks question from relevant costing, 14 marks from make or buy, key factor or accept, reject. They ask a question where there is key factor also, make or buy also, accept or reject also in the same question itself. So you have to make sure that if you are doing this particular topic, do the questions which include all the 3 topics together. ठीक है, सो 14 मार्क्स के इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. और फिर उसके बाद आपकी ये जो रिलेवेंट कॉस्टिंग है उससे भी देखो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया गया है. तो मोस्टली जो ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस चैप्टर से वो इधर से ही आ रहे हैं, मोस्टली इधर से आ रहे हैं. फिर इसके बाद हर बार का इनका फेवरेट टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग, ये छोड़ते ही नहीं है, हर बार पूछते हैं. देखो हर बार हर अटेम्प्ट में पूछ रहे हैं. बीच में 1-2 के से छूट गया, लेकिन बाकी सारे के सारे अटेम्प्ट में इन्होंने पूछा है. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आखिरी के बचे हुए 5 टॉपिक्स है ना, ये 5 में से किसी का भी उठाते हैं और उसमें से 7 मार्क्स का पूछ लेते हैं. देखो पहले ये पूछा, फिर इधर से पूछा, किधर से पूछा दिखा दूँ. पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से पूछा, फिर टारगेट कॉस्टिंग से पूछा, फिर प्रोबेबिलिटी से पूछा, फिर एसेट लाइफ साइकिल से पूछा, फिर टारगेट कॉस्टिंग से पूछा. तो ये ऊपर नीचे करते रहते हैं इसमें. हाँ, तो ये जो 7 मार्क्स का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है वो इनमें से किसी से में भी से आ सकता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि वो एक स्पेसिफिक पार्टी पकड़ेंगे, इसमें से कुछ भी पकड़ के वो पूछ सकते हैं. नाउ अगर मैं आगे बढ़ूँ अपने इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस में, तो यहाँ से 14 मार्क्स का आ ही रहा है यार हर बार. चाहे वो एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लें डायरेक्टली 14 मार्क्स का, जैसे ये डायरेक्टली 14 मार्क्स पूछ रहे हैं ना, तो उसमें रिकन्सिलेशन पूछने के ज़्यादा चांसेस है कि रिकन्सिलेशन का एकदम डिटेल वाला क्वेश्चन तुमको दे दिया. अदरवाइज ये मटीरियल ओवरहेड पूछा था इन्होंने दिसंबर 25 में, ये थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ करते रहते हैं. फिर इसके बाद बाकी सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सजेस्ट यू सब करेंगे. बाकी मैं क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, चलो अब आ जाओ पहले थ्योरी चैप्टर्स. ये चैप्टर नंबर 1 और 2 ये दोनों थ्योरी चैप्टर्स हैं. मोस्टली जो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है किस टॉपिक से बन रहा है, लीन अकाउंटिंग से. इन्होंने 3-4 बार पूछ लिया, 3 बार तो पूछ ही लिया, 4 बार पूछ लिया, 1 2 3 4 लीन अकाउंटिंग. लिखते जाएंगे, टॉपिक्स लिखो और ये जो मार्क्स दिया ये नंबर्स दिए वो भी लिखेंगे. ठीक है, फटाफट. फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, देन एनालाइज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इवन इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाला. फिर इसके बाद लीन अकाउंटिंग और परीतो एनालिसिस. ठीक है, लीन अकाउंटिंग, परीतो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये 3 तो करके जाना ही जाना है. और एक 6 सिग्मा वाला भी कर सकते हैं, 6 सिग्मा, क्योंकि एक बार पूछा था बहुत पहले, अब चांसेस हैं कि अभी भी वो वापस लेके आ जाए.
फिर वैल्यू एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 से इन्हें बहुत पसंद है, चैप्टर नंबर 1 से इन्हें बीपीआर भी बहुत पसंद है, तो ये 2 टॉपिक कर लेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ तो मेक और बाय एक्सेप्ट रिजेक्ट में बता दिया क्या तुमको कि ये मिक्स करके पूछते हैं, यहाँ पे मेक और बाय एक्सेप्ट रिजेक्ट पूछ लेंगे, सिर्फ मेक और बाय पूछ लेंगे, की फैक्टर इंक्लूड करके पूछ लेंगे, ऐसे मेक और बाय एक्सेप्ट रिजेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव ये सबको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है। बाकी रेलेवेंट कॉस्टिंग से पूछ रहे हैं तो वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का ही स्पेसिफिक 14 मार्क्स का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। देन इन ट्रांसफर प्राइसिंग अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फॉर श्योर यहाँ से आता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये भी एक अच्छा टॉपिक है। देखो तुमको बताया क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 मार्क्स का कोई भी टॉपिक से पूछ सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें 1 2 3 4 और ये 5 थ्योरी वाला दिख रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ ये बहुत आसान है, इसे किया जा सकता है। यहाँ के 7 मार्क्स तो आसानी से ग्रैब किए जा सकते हैं, क्योंकि जो इनके क्वेश्चंस बनते हैं ना वो बहुत आसान बनते हैं। कोई स्पेसिफिक पैटर्न एज सच नहीं है, लेकिन कर ज़रूर लेंगे, और इसका तो एक ही कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ है ही नहीं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो कर लेंगे भाई साहब। नेक्स्ट थ्योरी में यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है पहले वो देख लो। सिचुएशंस वेयर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड बिलो मार्जिनल कॉस्ट, काइजन कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, देन सिचुएशंस वेयर फिक्स कॉस्ट बिकेम रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से इन्होंने पहले थ्योरी पूछ रखा है, तो उन टॉपिक्स को कर लेंगे। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम में ये एक बार थ्रूपुट अकाउंटिंग पूछते हैं, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूछते हैं, फिर थ्रूपुट पूछते हैं, फिर एबीसी पूछते हैं, फिर जस्ट इन टाइम पूछते हैं, मतलब ऊपर नीचे खेलते रहते हैं ये 3 स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। तो यहाँ का 7 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन दीज 3 टॉपिक्स स्पेसिफिकली, ठीक है। बहुत लेस चांसेस हैं बैक फ्लश और बेंच मार्किंग के, अभी तक एक ही बार पूछा गया है यहाँ पे, और वो भी थ्योरी क्वेश्चन था। बेंच मार्किंग तो थ्योरी ही है, तो उसके भी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिकंसिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ वो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से रिकंसाइल करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर वो बजट और एक्चुअल वाला भी पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। बाकी मटेरियल, फिक्स्ड ओवरहेड, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड अगर अलग अलग पूछ रहे हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी से भी पूछ सकते हैं। और इट्स नॉट लाइक कि तुमसे सिर्फ ये जो मेन वेरिएंसेस है वो पूछेंगे, वो तुमसे प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस करके एक छोटा सा पार्ट है वो भी पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में थ्योरी आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आता है तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो ध्यान रखना है। पहला इंटरफर्म कंपैरिजन और दूसरा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। एलपीपी भाई साहब, ये एलपीपी के अंदर में बहुत कुछ कवर्ड है, तुमने भी देखा होगा। ग्राफिकल मेथड है भाई साहब, सिंप्लेक्स मेथड है, नहीं पूछते ये इतने समय से पूछ रहे हैं और सिर्फ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी ही पूछ रहे हैं, और मुझे आगे भी लगता है कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी ही पूछेंगे तुमसे एग्जाम में, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी के लिए, लेकिन फॉर्मुलेशन में प्राइमल डुअल वाला पूछ सकते हैं, हाँ ये तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, बहुत लंबे समय से पूछते नहीं है इसे। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने का क्वेश्चन था। फिर असाइनमेंट इनका फेवरेट टॉपिक है, देखो जरा असाइनमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पेपर का एनालिसिस किया है, 8 बार तो असाइनमेंट ही पूछ लिया भाई साहब। तो असाइनमेंट इनका फेवरेट टॉपिक है आउट ऑफ दिस 4, और ये एलपीपी, ठीक है। और गेम थ्योरी और ट्रांसपोर्टेशन ये कभी कभी पूछते हैं, जब मन करता है तब उठा के डाल देते हैं, मुझे लगता है। लेकिन तुम्हारे में गेम थ्योरी आ सकता है अगर पैटर्न वाइज चलूँ तो। देखो 2 अटेम्प्ट छोड़ा फिर पूछा, फिर 2 अटेम्प्ट छोड़ा फिर पूछा, तो तुम्हारे में चांसेस हो सकता है कि गेम थ्योरी पूछ ले वो। सिमुलेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर एक बार ये क्वेश्चन पूछते हैं सिमुलेशन से रिलेटेड, आगे भी चांसेस है कि तुम्हें सिमुलेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, हाँ अब ये नेटवर्क एनालिसिस में समझेंगे। मोस्टली ना ये जो फ्लोट और नॉर्मल सीपीएम वाले कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो तुमसे नहीं पूछते, वो ये बचपन में सीएमए इंटर में पूछ के खत्म कर दिया। तुमसे ये स्पेसिफिकली पर्ट के बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ये पूरा पर्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पर्ट का क्वेश्चन है। और क्रैशिंग का भी पूछते हैं, 2 बार क्रैशिंग पूछा था और उसके बाद से पूरा पर्ट चला रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे डालेंगे तो वो क्रैशिंग डाल सकते हैं तुम्हारे लिए। तो पर्ट और क्रैशिंग दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, 5 अटेम्प्ट में भी देखोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लर्निंग कर्व के अंदर भाई साहब ये स्पेसिफिकली इसे बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि सीएमए इंटर में भी डाल चुका है अच्छा खासा, है ना, तो यहाँ ये इसे बहुत कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर डालते हैं तो जो आपका डबल नहीं हो रहा है यूनिट्स, उसके क्वेश्चंस के ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ ये टॉपिक देखो, ये टॉपिक ना तुम्हारे फाइनल में बस है, भले बहुत छोटा है, मैक्सिमा मिनिमा बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारे फाइनल में बस है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली इससे तो पूछा ही जा रहा है। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एक क्वेश्चन है, इसके अंदर वो ही पूछते हैं हर बार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वैल्यूज अलग अलग करके मैक्सिमम प्रॉफिट ही पूछ रहे हैं, तो कर लो भाई साहब।
क्या जाएगा तुम्हारा, एक आध क्वेश्चन देख लोगे इसके खत्म हो जाएगा चैप्टर। प्लस विद दैट ये बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल में ना एक तो टाइम सीरीज है, लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला। अब ये मेरे को नहीं लगता कि तुमसे आगे पूछा जाएगा, भले पास अटेम्प्ट में पूछ लिया गया लेकिन मेरे को नहीं लगता आगे पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो सिर्फ एक बार देख लेना, सिर्फ एक बार। ये तुम्हारा OMSM में CMA इंटर में कवर होता था ना, वो वाला टॉपिक है। फिर उसके बाद तुम्हें जाना चाहिए स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे इसमें ना हर बार ये अलग अलग से पूछ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये इस बार सीजनल का मूविंग एवरेज वाला जो मेथड है वो पूछ सकते हैं तुमसे। ट्रेंड रेशियो इन्होंने पूछ रखा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार मूविंग एवरेज जो सीजनल वाला है वो पूछ लें, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव वे पूछ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल पूछ चुके हैं, देख लेंगे एक बार। स्पेसिफिकली छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म किया जा सकता है नाउ। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू टूल्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स एक ही बार पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का और एक फीचर्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा है। यही बस पूछा है इसके अंदर, और पूछा नहीं है। आगे चांसेस हैं कि इससे पूछा जा सकता है तुमसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनालिसिस है, जहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक जगह पे बता दिया तुम्हें कि क्या क्या टॉपिक्स कर सकते हो। और भाई साहब ये जो PDF है ज़रूर से ज़रूर तुम्हारे साथ शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे @CMA जंक्शन, ज़रूर से देख लेंगे। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हारा मैराथन आने वाला है, SCM हिंदी मैराथन, जो ऐसी जैसी भाषा में मैं अभी बात कर रही हूँ, इन दैट लैंग्वेज इट विल बी कवर्ड ऑन 5 जून 2026, मतलब कल ही आ रहा है, 6:15 पे आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम इसे देख रहे हो और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हो अपने पेपर्स के लिए। एंड विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट SCM इंग्लिश मैराथन on 6th June 2026. This is going to be in complete English language at 6:15 p.m. itself on 6th June 2026. And this particular PDF, you will definitely get it in the Telegram channel. Make sure you're joining Telegram channel @CMA Junction. And the link for this particular notes in the Telegram channel is given in the description box also. And yes, the most important thing, you have done a lot of efforts for all of you, for yourself. You have prepared for 6 months to 1 year. And now this is the time to get the results of it. So make sure that whatever time is left for your exams, you're giving all of your effort, whatever you can do. Do studies for 12 hours, 14 hours, whatever you can do. Plus make sure that you're also keeping check of your health, because you can't compromise on the health at this particular period of time. And all the very best for all of you. बहुत अच्छा करोगे तुमने बहुत मेहनत की है, अब सिर्फ रिजल्ट्स देखने का समय है उसका। तो उस रिजल्ट्स के लिए अभी आखिरी के थोड़े से दिन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, जितनी की है उससे भी और ज़्यादा। See you, all of you, in the marathons. Till then, happy learning everyone. Radhe Radhe. Bye bye everyone.